Please introduce yourself. Yes, sir. Sir, I have done my graduation from Jadavpur University in Marine Engineering. Currently, I'm working in Merchant Navy, sir. What is your optional and the graduation subject? Sir, my graduation subject is Marine Engineering and my Hmm. optional is Geography, sir. Okay. So, Prakash, do you know about nine dash line? What is nine dash line? Yes, sir. Sir, this nine dash line is basically encircling the South China Sea Hmm. to for which China is claiming as its sovereign territory, sir. Okay. Who are the major players in this particular issue, South China Sea issue? Which countries are? Sir, Hmm. Yes. Sir, there are few East Asian country and ASEAN countries, sir. Hmm. Like sir, Japan, sir, which is claiming the Shikoku Island, Paracel Islands, which is claimed by Malaysia and Thailand, Hmm. and some Soals is claimed by Philippines. Okay. So, what is the significance of Red Sea from an economic and strategic point of view? Sir, Red Sea basically lies in a major trade route, which Hmm. is south, which basically geographically, it is basically south of the Suez Canal and north of the Bab el Mandeb, and Hmm. it is lying in the major trade route. And sir, basically, 60 more than 60% cargo and container ship passing through this area. Along with it is also very important since recently the Houthis rebel is quite active in this region, sir. Any significance because of the oil industry or the oil Yes, rich sir. countries there? Yes, sir. Sir, it is also important in the perspective of oil trade, sir, and natural gases, since it is bordering the Saudi Arabia Hmm. and Yemen. So it is basically the major route of the oil trade, sir. And at the same time, sir, in the Bab el Mandeb and the Gulf of Aden, it Hmm. also near to uh, the horn, famous Horn of the Africa, which Hmm. is basically the piracy zone. Okay. So, you said you were working somewhere. Yes, sir. Okay. Yes, Can you tell me about that? Where were you working? sir. Sir, I'm currently working in Anglo Eastern Private Limited. Hmm. Sir, basically, I am on the bulk carrier fleet, sir. So you So travel yes, sir. around the globe. Yes, sir. Okay. So just now you mentioned about the piracy center around Horn of Africa. Yes, sir. Can you just detail me about the piracy issue, how it is done, and like what laws are there to control that globally? Yes, sir. Sir, basically, since Somalia is largely involved in this piracy activity, so since it is near to the Bab el Mandeb region, which is also the choke point, so sir, so since it is in the major trade route of the oil and different type of cargoes, so they used to basically chase the ships and they climb over the ship. So through that, they used to do piracy. There are many international laws Hmm. which is against the piracy. The first is it is related to the UNCLOS also, and second with the IMO guidelines, and third one is ISPS codes. ओके ओके। प्रकाश, आपने आर्टिक ट्रेड रूट के बारे में सुना है? ये क्या है? लाइक, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? यस सर। सर, रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग के कारण मोस्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन्स जो हैं उनका उनका जो आइस है वो थॉ हुआ है, जिसके वजह से जो नॉर्दर्न एरिया ऑफ द जो आर्कटिक रीजन है मोस्टली नियर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द रशिया, ये ये एक न्यू ट्रेड रूट की तरह इमर्ज करके आ रहा है। इट इज बेसिकली बाईपासिंग द रशियाज डिपेंडेंस ओवर द बॉस्फोरस स्टेट एंड ब्लैक सी एरिया। ओके। इंडिया का कोई स्टेक है क्या उसमें? लाइक, इज इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन दैट? एनी आइडिया अबाउट दैट? सर, इंडिया इज ऑब्जर्वर इन आर्कटिक सर्कल, सर। ओके ओके।
Can you tell me how communication is carried out in ships since you are traveling? So I would like to understand what are the latest technologies which you all use for communicating and navigating. Yes, sir. Sir, we have VHF, that is very high frequency through which we can communicate with the ports. Secondly, we have satellite phones Mm-hmm. that through that also we can communicate. And third one, nowadays, Starlink program is also there. So we have internet facility on board. So through that we can communicate. These are the communication route mostly during the normal times. In emergency times, Mm-hmm. we have pyrotechnics and several other measures like SAT, IPER, through which we can communicate. You mentioned about Starlink. What is Starlink? Sir, Starlink is basically the program of the SpaceX. Mm-hmm. That is the owner of the SpaceX is Elon Musk. Starlink is a collection of satellites through which we can provide internet to those areas where the normal internet is not available. So it works on which frequency or like which waves? Do you have any idea about the satellite internet works around which waves? So it works on radio waves, sir. Okay, okay. So let's move on to the international relation part. Okay. Yes, Have yes, you sir. heard about the recent expulsion of 6 Canadian diplomats by India? Are you aware of Yes, that? sir. Yes, Okay. sir. So इसमें खालिस्तान का क्या इशू है? Can you just explain me that? सर इसमें ऐसा कनाडा ब्लेम कर रही है कि जो हरदीप सिंह निज्जर मिस्टर हरदीप सिंह निज्जर की जो वहां पर जो असैसिनेशन हुआ है, इस पर इंडिया ने करवाया है बेसिकली। हरदीप सिंह निज्जर जो हैं वो एक सिख प्रीचर हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका खालिस्तानियों के साथ जो है हम्म। वो भी कनेक्शन रहा है। हम्म। सो इसमें खालिस्तान का एंगल इस तरीके से आता है। तो इंडिया का क्या लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया इन दिस? इंडिया अपने आप को ऐसा नहीं कहती। इंडिया कहती है कि हम इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ये कनाडा का अपना इंटरनल इशू है सर। Okay. You mentioned about the Houthi rebels also in your यस previous सर। answer. यस सर। Who are Houthis? Who are Hezbollah? And यस सर। who is Hamas? सर ये वेस्ट एशिया में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस, Mhm. जो कि ईरान लेड है। ये इन्हीं से जुड़े हुए मिलिटेंट एज वेल एज पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो कि इसराइल और यूएसए का जो डोमिनेंस है इस वेस्ट एशिया में, ये इसके अगेंस्ट जो है ये एक्टिव है सर इस जोन में। हिजबुल्ला, हाउती एंड हमास सर। So recently, have you heard about the pager attack done by Israel on Hezbollah? यस सर। Okay. So who was killed in that? सर हिजबुल्ला के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, Mhm. उनकी मृत्यु हो गई है सर। ओके सो इसके बाद इस इंसिडेंस के बाद ऐसा माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह काफी वीक हो चुका है बट अगर हम कल या परसों की बात करें यू माइट हैव हर्ड दैट यस अगेन दे सर। हैव अटैक्ड ओवर इजराइल यस सर। एंड दिस टाइम विद यस मोर सर। यस इंटेंसिटी दे हैव अटैक्ड सो यस सर। हाउ who is funding them and from where they are getting that power? सर ये सर अभी इन्होंने जो अटैक किया है हम्म। थ्रू दी रॉकेट्स, हम्म। ये बड़ा प्रिकेरियस अटैक था सर, और उन्होंने हम्म। डिस्गाइज किया इसराइल को, जो उनका आयरन डोम प्रोजेक्ट है। हम्म। अभी इनके फंडिंग के बारे में अभी क्लियर सोर्स तो नहीं है, लेकिन दे आर बैक्ड बाय ईरान, हम्म। ऐसा माना जा रहा है। हम्म। ओके रिसेंटली कौन सा ऐसा मेजर स्पोर्टिंग इवेंट बिहार में चल रहा है? यस सर। सर एक स्पोर्टिंग इवेंट राजगीर में होने वाला है, हम्म। दैट इज विमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप है सर। Okay, okay, okay. So you have mentioned your post preference as all the uniform jobs, DSP, jail superintendent, district commandant. Okay. यस Can you explain the reason for the love for this uniform post? सर, मैं पिछले 14 सालों से मर्चेंट नेवी में ही काम कर रहा हूँ सेकंड इंजीनियर, और वहाँ पे भी मैं सर यूनिफॉर्म
का ही जॉब कर रहा था। यूनिफॉर्म के जॉब में सर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिसिप्लिन है, जो मेरे लाइफ में थ्रू मर्चेंट नेवी के जॉब के थ्रू इनकलकेट हुआ है। मैं चाहता हूँ इसी डिसिप्लिन, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बिहार में भी सर्व करूँ सर। ओके, सो व्हाट इज स्मार्ट पुलिसिंग, प्रकाश? सर स्मार्ट पुलिसिंग जो है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी लेड पुलिसिंग है। इसमें स्मार्ट में एस सिंप्लीफाइड होता है, एम जो होता है वो सर मैं फुल फॉर्म अभी नहीं मुझे ओके याद है, ओके, लेकिन नो। बेसिकली ऐसी पुलिसिंग है जो कि जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के हेल्प से पुलिसिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी को एंगेज करके कर सकते हैं। और जो है हम ट्रेनिंग, अब एक सुटेबल ट्रेनिंग जो होता है जेंडर सेंसिटिवनेस का, वो सब लेकर जो है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सिक्योरिटी के बारे में सोच सकते हैं सर। So overall, it means use of technology in the policing part smartly. इसके अलावा भी ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है सर, ये इसमें Okay. टेक्नोलॉजी एक आस्पेक्ट है। इसके अलावा सर इसमें जैसा मैंने कहा सर आपको कि कम्युनिटी पुलिसिंग का भी एक एंगल आता है, ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाने वाली बात आती है, प्रॉम्प्ट एक्शन की बात की जाती है कि अगर कोई एफआईआर करता है तो प्रॉम्प्ट करें, और रैपिड पेट्रोलिंग की बात की जाती है, फ्रीक्वेंट पेट्रोलिंग की बात की जाती है। What is zero FIR? सर मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता है, लेकिन जीरो एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर से होता है। इसमें प्लेस जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में आप जाएं वहीं पर करें। आप ऑनलाइन कहीं से भी एफआईआर कर सकते हैं, जहां पर आपको जो कंप्लेन है उससे रिलेटेड जो है आप एफआईआर कर सकते हैं। ओके, तो इसका प्रोविजन अभी रिसेंटली 3 लॉज जो बने हैं उनमें से यस सर। किसमें दिया गया है इसका प्रोविजन? 3 लॉज पहले तो कौन सर कौन से फ्रेम हुए हैं नए? उनके नाम बता दीजिए आप। यस सर। सर जो इंडियन पीनल कोड था वो हम्म भारतीय न्याय संहिता हो गया है, हम्म और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसका नाम जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। हम्म। और सर इंडियन एविडेंस एक्ट जो है भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया है। जीरो एफआईआर के बारे में सर वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जिक्र किया गया है सर। ओके ओके ओके, हु इज द डीजीपी ऑफ बिहार, प्रकाश? सर श्री आलोक राज सर। ओके, एंड वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिहार पुलिस? सर पटना सर। ओके। आपने अभी रिसेंटली कोई ऐसा बड़ा क्राइम के इंसिडेंट्स के बारे में सुना है क्या, जो बहुत न्यूज में रहा हो? एनी बिग क्राइम इंसिडेंट्स? सर एक तो आरजेके आरजेकर कॉल आरजेकर कर मेडिकल कॉलेज जो है सर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर एक सर रेप और मर्डर केस हुआ है सर। वो एक तो तो ये काफी है। पुराना हो गया। यस सर। रिसेंटली सेकंड अभी सर, 2-4 दिन, 2-4 दिन के अंदर की कोई ऐसी बड़ी क्राइम के इंसिडेंट्स? सर एक हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में एक साइबर क्राइम हुआ है जिसका लिंक बिहार से देखा गया है। हम्म। वो आज ही की घटना है सर। ओके। क्राइम क्राइम से तो नहीं अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हम्म। लेकिन एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ है सर। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द बहराइच कम्युनल इंसिडेंट? यस सर, आई हैव हर्ड इट। ओके, सो व्हाट व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? क्या गलत हुआ वहां पर? किस वजह से वो हुआ? सर ये तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम्म लेकिन ये इंसिडेंट जो प्राइमा फेसी में नजर आ रहा है हम्म उसमें ये था कि मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग जा रहे थे, हम्म और उसी में कुछ म्यूजिक, उन्होंने कुछ लाउड म्यूजिक बजाया था। हम्म फिर शायद, अभी ये पूरी तरीके से सर प्रूवन फैक्ट नहीं है, हम्म। फिर शायद दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने रोका और फिर वो वहां पे एक गनिंग डाउन इंसिडेंट हुआ है सर, इंसिडेंट हुआ ओके, जिसमें इफ एक लोग की यू ओके ओके इफ यू वर देयर ऑन द ड्यूटी एज अ डीएसपी, हाउ वुड यू हैव मृत्यु। डेल्ट विद द सिचुएशन? आपने क्या किया होता उस सिचुएशन में, अगर आप डीएसपी, आपकी तैनाती होती वहां पर तो? सबसे पहले तो सर जो एरिया जहाँ से जो मुझसे विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, मैं उस एरिया को पहले तो बेसिकली कॉर्नर ऑफ करता कि हम्म इस एरिया में जा रहे हैं। दूसरी बात, उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर डेसिबल साउंड से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है मतलब ये अगेंस्ट भी है कि आप 80 डेसिबल से ज़्यादा वॉइस नहीं कर सकते हैं। ओके। दूसरी बात सर कि
पेट्रोलिंग में बहुत एक्टिव रहता है इस जोन में, क्योंकि ऐसा कैसे हो गया कि कोई बंदूक लेकर सर इस जोन में चला गया। तो मैं कोशिश करता सर कि पेट्रोलिंग ठीक से हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हथियारबंद आदमी जो है वो ग्रुप में घुस जाए और किसी को भी गोली मार दे। हम्म। तो इन चीजों का मैं ध्यान रखता सर। Okay. So, Prakash, my last question from you is, uh, यस how will you use your knowledge of geography and marine engineering? Both deal with most probably geography overall. So, how will you use your knowledge, combined experience of these 10 years? How will you control the situation of ongoing floods in Bihar? यस सर। सर And, and, सबसे and, पहले, and one more, I'll add one more thing. What changes do you see has to be made? You यस observe these things, you have read about these things. What problems यस do you identify as a geography student, and यस what सर are the solutions to that? यस सर। सर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक रिपोर्ट आया था। Hmm. इनमें इन्होंने कहा था कि कोसी रिवर में हमने इम्बैंकमेंट बनाया है। सर केवल इम्बैंकमेंट से फ्लड नहीं रोका जा सकता है। इम्बैंकमेंट के साथ सर हमें ना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। यही सेम केस हल्दिया में भी है सर। वहां पर बहुत फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, बहुत फ्रीक्वेंट सिल्टिंग का प्रॉब्लम रहता है। हालांकि फरक्का बराज बनने के बाद वो सिल्टिंग कम हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रेजिंग किया, इसके वजह से आज भी वो ऑल वेदर पोर्ट बना हुआ है। तो सर हम यही चीज जो है ना अपने बिहार में कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्रीक्वेंट ड्रेजिंग करें तो हम लोग जरूर सर फ्लडिंग की प्रॉब्लम को से सॉल्यूशन पा सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं सोच पा रहा हूँ सर, कि ज्योग्राफी के नॉलेज से, कि Hmm. रिवर का जो चैनल होता है सर उसमें उसके अपने कुछ ज्योमेट्री होता है सर। Hmm. तो जैसे कि रिवर बैंक मटेरियल्स होते हैं, और रिवर की जो विड्थ होता है, डेप्थ होता है, और उसका अपना एक डिस्चार्ज होता है। तो सर ज्योग्राफी के नॉलेज के थ्रू सर ना हम लोग बिहेवियर के, रिवर के बिहेवियर एनालिसिस कर सकते हैं। इससे हम लोग मानसून के आने से पहले ही ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और मानसून के बाद भी, कि कब तक वो फ्लड आ जाएगा सर। तो वो हमारी मॉनिटरिंग में हमारी मदद करेगा। और थर्ड सर, जो शिपिंग में मैंने सीखा कि सर चाहे कोई भी डिजास्टर क्यों ना हो, हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो उसके लिए समय हमें बहुत फ्रीक्वेंट मॉक ड्रिल्स कराना चाहिए सर। बिहार गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सर, सचेत करके। Hmm. सर हमें इसे ना कम्युनिटी लेवल पे प्रमोट करना चाहिए सर। Okay, good, good, Prakash. Interview is over. Thank you very much. It was very good, very good. Everything was very good. थैंक यू सर। ठीक है.